Dear students, you all know that in our diploid cell there are 44 autosomes and 2 sex chromosomes. These sex chromosomes are of two types, X and Y type. If it is female, then there will be two same type of sex chromosome X and X, and if it is male, then there will be two different types of sex chromosome X and Y. And 44 autosomes, these 44 autosomes, they are similar in both male and female. So if we count the total number of these chromosomes, autosomes and these sex chromosomes are counted together, then you all know that we have in total 46 chromosomes. 44 are the autosomes, and including these autosomes, these sex chromosome, then we will have total of 46 chromosomes. So if there is any imbalance in copies of the sex chromosomes or autosomes, if there is less or more number of these autosomes or sex chromosomes, then obviously it will lead to abnormal development. In this video, we are going to study what happens if there is abnormal number of sex chromosomes in male or the female. Means if the person is going to have extra or less copy of these chromosomes, then what problem that particular individual is going to face. So imbalance in copies of the sex chromosome disrupt the genetic information necessary for normal sexual development. That's why the disorders will develop. So in this lecture we are going to study two types of disorders. One is the Klinefelter syndrome and other is the Turner syndrome. Okay. So what is the Klinefelter syndrome? Let's first of all discuss this disorder. This Klinefelter syndrome individual is having a genotype 46 plus 1. Let's represent these 44 autosomes as 2A. A is representing the autosome, and why we are showing here the 2A means the diploid chromosome number. यहाँ पर टोटल ऑटोसोम्स का दो सेट्स दिखाए गए हैं. वन सेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द मदर एंड वन इज फ्रॉम द फादर. तो यानी कि 22 क्रोमोसोम्स मदर से मिले हुए, 22 क्रोमोसोम्स फादर से मिले हुए. तो टोटल ये ऑटोसोम्स को हम 2A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इस डबल सेट में, ऑटोसोम्स के डबल सेट में जब हम सेक्स क्रोमोसोम्स को प्लस करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर फीमेल है तो 2 X क्रोमोसोम्स दिखाएंगे, अगर ये मेल है तो हम यहाँ पर 2 सेक्स क्रोमोसोम दिखाएंगे, लेकिन उनमें से एक X होगा और एक Y होगा. ठीक है. तो 2A इज रिप्रेजेंटिंग द ऑटोसोमल सेट 2A. तो अगर Klinefelter सिंड्रोम की हम बात करें तो इसमें जो इंडिविजुअल है उसमें 46 क्रोमोसोम जो हमारा एक नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है उसके बजाय 47 क्रोमोसोम नंबर होता है. जैसे यहाँ पर 46 तो नॉर्मल है जिसमें आपके ऑटोसोम्स भी आ गए, ये 44 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स, तो टोटल तो 46 वही क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन इनके पास एक एडिशनल कॉपी होती है सेक्स क्रोमोसोम की. And because of presence of additional copy of this sex chromosome, the person will develop this Klinefelter syndrome. And what is the nature of that sex chromosome? That sex chromosome is the X chromosome. Y की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर. The person will be having 2 X chromosomes and 1 Y chromosome. नॉर्मल क्या होता है, या तो 2 X होने चाहिए या एक X और एक Y होना चाहिए. ये नॉर्मल किसी भी पर्सन का जीनोटाइप होता है. लेकिन अगर किसी भी पर्सन में ऑटोसोम्स के साथ साथ 3 सेक्स क्रोमोसोम हों तो ऐसे पर्सन में Klinefelter सिंड्रोम डेवलप हो जाता है. Because here 3 copies of sex chromosomes are present, that's why it is known as trisomy of sex chromosomes. Having
3 copies of सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, यहाँ आपको एबनॉर्मल क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ आप 3 सेक्स क्रोमोसोम देख रहे हैं। नॉर्मल में या तो 2 एक्स क्रोमोसोम फीमेल होनी चाहिए या एक्स वाई होना चाहिए जैसे यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 सेक्स क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज ए डिसऑर्डर। और आप इनका टोटल काउंट करें, 44 तो ऑटोसोम्स हुए, फिर 45, 46 एंड 47, तो टोटल इस इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारे लिए एक एबनॉर्मल नंबर है हमारे स्पीशीज के लिए। ह्यूमन बींग्स हैव ए नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर ऑफ 46, 23 सेट फ्रॉम द मदर, 23 फ्रॉम द फादर, but what we are observing here will be 46 plus 1, this extra chromosome is present, this sex chromosome. Okay, now let's study how this disorder develops. कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जब डेवलप होता है तो उसके पीछे रीजन मियोसिस प्रोसेस रहती है। द मियोसिस प्रोसेस, you all know that it is completed into 2 phases, meiosis first, meiosis second. तो यहाँ पर एक डायग्राम हमने आपके लिए बनाया है। दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग ए फ्यू स्टेजेस ऑफ द मियोसिस प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ स्टेजेस को हाईलाइट किया है। ये वाला जो सीक्वेंस दिखाया गया है, दिस सीक्वेंस इज शोइंग द नॉर्मल मियोसिस प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं कि मियोसिस में एक मेटाफेज स्टेज आती है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर पर या इक्वेटोरियल लाइन पर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो आप क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो आप इनको इमेजिन कीजिए कि ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, आप इसको एक्स क्रोमोसोम मानिए। तो ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ए पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब ये डिप्लॉयड सेल है और इसमें मियोसिस जब होगी तो जो 4 सेल इसकी डॉटर सेल्स डेवलप होंगी, दे ऑल विल बी हैप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, तो ये अभी पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर, और वो भी कौन सा, सेक्स क्रोमोसोम का पेयर यहाँ पर अपने आप को अरेंज करे है। और इन क्रोमोसोम्स के साथ अब देखिए यहाँ पर ऑपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर्स ने इनको अटैच किया हुआ है सेंट्रोमियर्स के साथ। हर दोनों क्रोमोसोम्स के साथ यहाँ पर ऑपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट दिखाई गई है। अब मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज फर्स्ट। तो अब एनाफेज में देखिए क्या हो रहा है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इन दोनों क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ पुल करना शुरू कर देते हैं। और पुलिंग से क्या होगा, ये नॉर्मल कंडीशंस में तो ऐसा होता है कि इस पेयर में से एक क्रोमोसोम इस पोल पर चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पर चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। इन एनाफेज फर्स्ट, ये एनाफेज फर्स्ट है और इस एनाफेज फर्स्ट में you can see that there is disjunction separation of the homologous chromosome pair। जो पेयर है, ये जो पेयर था ये अलग अलग हो जाता है, डिसजंक्शन हो जाती है। एक क्रोमोसोम एक पोल पर चला गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पर चला गया। ठीक है, और अब इसके बाद टेलोफेज, ये टेलोफेज दिखाई है जिसमें यही सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर इसको इमेजिन कीजिए कि 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, तो दोनों सेल्स में एक एक क्रोमोसोम चला गया है। होमोलोगस पेयर में से यहाँ पर दोनों डॉटर सेल्स के पास एक एक क्रोमोसोम है। और अब इसके बाद ये दोनों सेल्स मियोसिस सेकंड को फेस करेंगी। मियोसिस सेकंड के बाद जब मियोसिस सेकंड पूरी हो जाएगी तो उसके बाद 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और इन क्रोमोसोम्स की जो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं हर सेल में चली जाती है। ओके, तो जितना क्रोमोसोम का नंबर हम ऊपर लेके चले थे, यहाँ 2 थे क्रोमोसोम्स, यहाँ पर आपको हर सेल में एक एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से हम मियोसिस को एक रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। अभी आपने इन दोनों क्रोमोसोम्स को क्या इमेजिन किया है, दीज क्रोमोसोम्स आर द सेक्स क्रोमोसोम। तो आप देखिए कि हर सेल में, हर डॉटर सेल में आपको एक सेक्स क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। किसी भी सेल में ऐसा नहीं है कि सेल जो क्रोमोसोम नंबर कम है या ज़्यादा है, सब में एक एक क्रोमोसोम दिखाया गया है। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम 2 थे और इन दोनों में से 4 डॉटर सेल जब मियोसिस सेकंड पूरी हो गई तो सबके पास एक एक सेक्स क्रोमोसोम है। ये तो हुआ नॉर्मल केस। लेकिन एबनॉर्मल केस
जब एबनॉर्मल मियोसिस प्रोसेस चलती है तो आप देखिए क्या हो सकता है। यहाँ इसका कंपैरिजन आप यहाँ से कीजिए। अगेन द सेम होमोलॉगस पेयर इज शोन हेयर ऑन दिस इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज प्लेट पर आपको दो क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अब देखिए कभी ऐसा होता है कि एनाफेज फर्स्ट में जहाँ इनका डिसजंक्शन हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हो पाता। देयर आर सम एबनॉर्मल कंडीशंस when this homologous pair is unable to separate out and both the pair both the chromosomes means the complete pair it move towards the same pole। एक ही पोल की तरफ दोनों क्रोमोसोम्स एक साथ चले गए, दूसरे पोल पर इनका कोई भी मेंबर यहाँ नहीं है। ठीक है, इस सेल में हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, ऑटोसोम्स नहीं दिखा रहे। तो यहाँ इस सेक्स क्रोमोसोम दो थे, इन्हें ऐसे ही सेपरेट होना था, लेकिन ये दोनों ऐसे सेपरेट नहीं हुए, एक साथ एक पोल पर चले गए। तो जब आप इस सेल को डिवाइड करेंगे, टेलोफेज फर्स्ट जब आएगी तब आप देखिए दो सेल्स तो बनी, लेकिन दोनों सेल्स में एक सेल में तो दो सेक्स क्रोमोसोम गए हुए हैं और एक सेल में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। और जब इनकी डॉटर सेल्स बनती हैं, टेलोफेज फर्स्ट के बाद जब मियोसिस सेकंड शुरू होगी और उसके पूरा होने के बाद 4 सेल्स बनेंगी, डॉटर सेल्स बनेंगी, तो आप देखिए क्या हो रहा है कि इनकी क्रोमेटिड्स, इन दोनों क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स दो सेल्स में चली गई हैं। यानी दो सेल्स तो ऐसी हैं जिनके पास दो दो क्रोमेटिड्स हैं। जैसे यहाँ 2 सेक्स क्रोमोसोम थे, यहाँ पर 2 सेक्स क्रोमेटिड्स हैं, डॉटर क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स। और यहाँ इस सेल से जो 2 सेल्स डिवाइड हुई हैं, बनी हैं, इन दोनों डॉटर सेल्स में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं दिखाया गया है। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम? क्योंकि इनकी जो पेरेंट सेल है, उस पेरेंट सेल में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए ये 4 सेल्स बनी हैं, लेकिन ये चारों की चारों सेल्स एबनॉर्मल हैं। ये पहली दोनों सेल्स एबनॉर्मल किस लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉपी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर इस सेल से कंपैरिजन करें तो एक ही सेक्स क्रोमोसोम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दोनों सेल्स में आपको 2 सेक्स क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉपी दिखाई दे रही है जो नहीं होना चाहिए था। क्या इनको आप नॉर्मल कहेंगे? ये भी नॉर्मल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इनमें कोई सेक्स क्रोमोसोम ही नहीं है। ओके, तो अगर कोई नॉर्मल स्पर्म, ये नॉर्मल स्पर्म है और ये मान लीजिए कि ये एक्स क्रोमोसोम ही है, अगर ये नॉर्मल स्पर्म इनमें से किसी भी सेल के साथ फ्यूज करता है तो आपको क्या लगता है कि कोई जाइगोट जो डेवलप होगा वो नॉर्मल डेवलप होगा? जैसे अगर ये स्पर्म इस गैमीट के साथ फ्यूज करता है तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? देयर विल बी 3 क्रोमोसोम्स, एक इस स्पर्म से और 2 इस एग से। ये सेक्स क्रोमोसोम जो भी जाइगोट डेवलप होगा उसमें 3 सेक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो जो जाइगोट होगा वो एबनॉर्मल रहेगा। ऐसे सेम केस इस एग के साथ भी होने वाला है। अब इसको देखिए, अगर ये स्पर्म इन दोनों में से किसी एक सेल के साथ फ्यूज करता है तो जो जाइगोट होगा उसमें सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम जाएगा जो फादर के स्पर्म से मिला है। मदर के एग्स में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं था, तो यहाँ पर इसकी पेयर्ड कंडीशन आपको नहीं दिखाई देगी। इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कॉपी नजर आ रही है सेक्स क्रोमोसोम की, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको एक क्रोमोसोम कम दिखाई दे रहा है, 1 क्रोमोसोम इज लेस। सो हाउ दिस एबनॉर्मल कंडीशन, दिस एबनॉर्मल जाइगोट डेवलप, दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई थी, यहाँ नॉन डिसजंक्शन की वजह से यहाँ डिसजंक्शन हुआ है, सेपरेशन हुआ है, सेग्रीगेशन हुआ है क्रोमोसोम्स का, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो पाया। इसीलिए एक सेल में तो एक्स्ट्रा कॉपी चली गई है और दूसरी सेल में एक भी क्रोमोसोम उस पेयर में से नहीं गया। इसलिए ये जो प्रोसेस चलेगी तो इसमें या तो एबनॉर्मल एग्स, जैसे मान लीजिए ये फीमेल की बॉडी में चल रही है प्रोसेस, तो ये एबनॉर्मल एग डेवलप हुए। अगर ये मेल है तो ये एबनॉर्मल स्पर्म है। तो अगर ऐसी कंडीशन मियोसिस में डेवलप होती है जहाँ नॉन डिसजंक्शन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, तो जाइगोट विल बी एबनॉर्मल। आइदर दे विल बी हैविंग एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम और दे विल बी हैविंग द लेस कॉपी ऑफ
द सेक्स क्रोमोसोम। सो लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की जो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली वो इस कंडीशन से डेवलप हुआ है जहां नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम्स की हुई और स्पर्म ने उस एग के साथ फ्यूज किया जिसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस लाइनेफेल्टर सिंड्रोम डेवलप्स। नाउ लेट्स स्टडी व्हाट हैपेंस इन दिस लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो जैसे आपको समझ में आ गया कि ये ट्राइसोमी है, इसमें नॉर्मल जो क्रोमोसोम का हमारा नंबर है उससे कहीं एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स टाइप का क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको सेल को रिप्रेजेंट भी किया है। मान लीजिए एक स्पर्म है, ये ए जो है इसके ऑटोसोम्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 22 होंगे। ये वाई है, नॉर्मल वाई, एक सेक्स क्रोमोसोम, और यहाँ फीमेल का जो एग है ये एबनॉर्मल दिखाया गया है। ऑटोसोम्स के साथ यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे तो 2 दिखाए गए हैं। ये एक एबनॉर्मल एग है, इट हैज़ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, दिस फ्यूजन ऑफ दिस एग एंड स्पर्म विल डेवलप दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल। देखिए ये ऑटोसोम 23 और यहाँ से ऑटोसोम 23, ये टोटल 44 हो जाएंगे। लेकिन जो ये वाई क्रोमोसोम है ये हमने यहाँ दिखाया, लेकिन मदर से क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, मदर इज कंट्रीब्यूटिंग 2 सेक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम। तो ये एक्स क्रोमोसोम ये दोनों इसे अपनी मदर से मिले हैं। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज एबनॉर्मल इंडिविजुअल। नाउ व्हाट विल बी द सिम्टम्स दैट विल अपीयर इन सच ऑर्गेनिजम्स, और दिस इंडिविजुअल में क्या सिम्टम्स या उसके कैरेक्टर्स क्या रहेंगे। तो जब ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम की ऑब्जर्व की जाती है जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम वाई भी है, तो जब वाई होता है तो आप याद रखेंगे कि ऐसे इंडिविजुअल्स को हम मेल कहते हैं। यहाँ ऐसे इंडिविजुअल को आप बॉय या मैन नहीं कहेंगे, दे आर जस्ट नोन एज द मेल मेंबर्स, ये मेल हैं। ओके, एंड व्हाट आर देयर बॉडी कैरेक्टर्स, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो जो वाई की वजह से जो मेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वो थोड़े से इन इंडिविजुअल्स में सप्रेस्ड रहते हैं, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते। हालांकि ये वाई है, इसके पास क्रोमोसोम, तो ये मेल तो है लेकिन इसमें फेमिनाइन फीचर्स भी डेवलप हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम भी हैं, जिसकी वजह से इसकी मेल फीचर्स सप्रेस रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इन इंडिविजुअल्स में कम रहता है। तो यहाँ पर हमने इनके कुछ फीचर्स लिखे हैं, जैसे सच इंडिविजुअल्स विल बी शोइंग फेमिनाइन डेवलपमेंट, फीमेल लाइक फीचर्स विल बी डेवलप्ड एंड they will not be, these feminine features are not suppressed because of presence of this extra copy of this X chromosome. They will show some female features, feminine features like gynecomastia. This gynecomastia is actually development of the breast, enlargement of breast. You all know that males are not having enlarged breasts. This is not their secondary sexual feature. But here in this case, here in this abnormal case, the individual will show this feminine feature, enlargement of the breast. Again I am saying they are male because of presence of this Y chromosome, but they are showing some feminine features. And they are sterile. Their testes are reduced. They are not going to produce the sperms. Testes are reduced, that's why they are not going to produce sperms and therefore they are sterile in nature. Although they have masculine appearance, वो बिल्कुल मेल्स के जैसे मस्कुलाइन तो दिखाई देते हैं, but this musculature is also having some feminine features. Okay, so this is the Klinefelter syndrome. This Klinefelter syndrome is developed because of trisomy of sex chromosome. Now let's discuss another case. यहाँ पर आपने देखा कि एक्स्ट्रा कॉपी है क्रोमोसोम की. Now we will study the next case in which we will study that there is less number of chromosomes. यहाँ पर देखिए
ये एक सिंड्रोम है जिसको आप कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में प्रॉब्लम क्या आती है, ये देखिए इसका जीनोटाइप है 2A, यानी ये ऑटोसोम से नॉर्मल 44 ऑटोसोम हो जाएंगे और सेक्स क्रोमोसोम ही दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एक सेक्स क्रोमोसोम दिखाया गया है, ओनली सिंगल सेक्स क्रोमोसोम इज देयर। ये जो O है या ये 0 आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान सकते हैं, ये सिंबल शो करता है कि यहाँ इसके साथ इसका कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, ना तो यहाँ कोई Y है ना ही यहाँ पर X है। नॉर्मल जीनोटाइप में XX होना चाहिए अगर वो फीमेल है, या XY होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनमें से एक क्रोमोसोम मिसिंग है, सिंगल X क्रोमोसोम इज देयर। तो टोटल काउंट करेंगे तो कितना क्रोमोसोम नंबर आएगा, ये कितने होते हैं, ये 44 और प्लस एक X क्रोमोसोम जोड़ लेते हैं 44 1, टोटल इसके क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है 45। ओके, इट इज हैविंग लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ हाउ इट विल डेवलप, ये देखिए एक एग दिखाया है, लेकिन ये एग कैसा है जिसमें सिर्फ ऑटोसोम्स को दिखाया गया है। एक नॉर्मल स्पर्म है जिसमें ऑटोसोम्स के साथ साथ सेक्स क्रोमोसोम भी दिखाया गया है, एक्स टाइप का सेक्स क्रोमोसोम। तो जब ये स्पर्म, नॉर्मल स्पर्म इस एबनॉर्मल एग के साथ फ्यूज करेगा तो जाइगोट जो डेवलप होगा उसमें देखिए क्या होगा, एक ऑटोसोम का सेट, यहाँ पर दूसरे ऑटोसोम का सेट, दोनों को हमने 2A लिख दिया, टोटल 44 क्रोमोसोम्स, टोटल ऑटोसोम्स तो बिल्कुल नॉर्मल इस जाइगोट में पहुँच रहे हैं। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम, एक्स टाइप का सेक्स क्रोमोसोम इसे अपने फादर से मिला है। मदर इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो इसीलिए जो जाइगोट है इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम कम है और इसीलिए ये एक एबनॉर्मल जाइगोट है। और इस एबनॉर्मल जाइगोट में जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, एक ही सेक्स क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मोनोसोमी मतलब यहाँ पर आपको सिंगल कॉपी दिखाई दे रही है। इफ द कंडीशन इज दैट we have only single copy of the sex chromosome, such condition is known as the monosomy। और यहाँ मोनोसोमी किसकी है, ये सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी है। अब देखिए क्या ये मेल होगा या फीमेल होगा, तो क्योंकि यहाँ पर Y नहीं है, याद रखिएगा Y है तो वो मेल में डेवलप होगा, तो यहाँ Y नहीं है तो ऑब्वियसली दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू फीमेल। ये फीमेल है लेकिन ये एबनॉर्मल फीमेल है और इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर आपको दिखाई देंगे और वो फीचर्स कुछ ऐसे हैं। दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू ए फीमेल विच विल बी स्ट्राइल। ऐसी फीमेल स्ट्राइल होगी क्योंकि उसकी जो ओवरीज हैं वो रूडिमेंट्री होंगी, वो अनडेवलप्ड ओवरीज होंगी, एग्स प्रोडक्शन नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, तो ऐसे फीमेल स्ट्राइल होती हैं। दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू हैव द सेक्सुअल फीचर। जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर किसी भी टिपिकल फीमेल में होते हैं वो आपको इनमें नहीं नजर आएंगे। दे विल लैक द सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स। देयर चेस्ट विल बी ब्रॉड एंड फ्लैट, शील्ड लाइक चेस्ट विल बी देयर। दे विल नॉट शो एनलार्जमेंट ऑफ देयर ब्रेस्ट। जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है वो फीचर इनमें नहीं होगा। ब्रॉड चेस्ट रहेगी, फ्लैट चेस्ट रहती है। एंड दे विल बी हैविंग शॉर्ट स्ट्रेचर, उनका हाइट छोटी रह जाती है और स्ट्रेचर काफ़ी शॉर्ट रहता है। दे विल बी हैविंग द वेब्ड नेक एंड लो इंटेलिजेंस। तो ये एक एबनॉर्मल केस है टर्नर सिंड्रोम का, जिसमें आपने देखा देयर इज मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम and there is another abnormal case where we have studied that there is trisomy of sex chromosome। ये दोनों ही डिसऑर्डर्स सेक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं। डिफरेंस इतना है कि ये डिसऑर्डर सिंड्रोम इसमें एक क्रोमोसोम कम है और यहाँ पर एक क्रोमोसोम ज़्यादा है। सो
आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट एनी इम्बैलेंस इन कॉपी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, किसी भी तरह का अगर इम्बैलेंस होता है सेक्स क्रोमोसोम्स में तो उससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाती है, जो नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस चलनी है वो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो गई है एंड दिस नॉर्मल इंफॉर्मेशन वाज नेसेसरी फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, इसलिए ऐसे इंडिविजुअल्स नॉर्मल डेवलप नहीं हो पाते. ओके, so I hope this is clear to you.